हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस। We see around us number of pair and group of objects which are same shape and size. For example, sheet of paper from the same empty notebook. एक नोटबुक में जितनी भी शीट्स होंगी या पेपर होंगे वो सेम शेप और साइज के होंगे. Such object which have the same shape and size are known as congruent object. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका शेप और साइज सेम हो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट नोन एज कॉन्ग्रुएंस. रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस. सेम आप देखेंगे दो जो कप है सेम है, लीफ सेम है, ये दोनों सेम है, ये स्टार सेम है, तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. वी फाइंड शेप, साइज एंड पोजिशन इन एवरी फिगर. इफ वी आर गिवन टू फिगर, then by simply looking at them carefully we can decide whether they are same shape or not. हम देख के बता सकते हैं कि वो सेम शेप और साइज के हैं कि नहीं. Here we will study about the congruence relation among the plane figure only. In other words, we will study about the same shape, size and line of page. First is the idea of congruence. If we place two congruent object over each other, they fully coincide. अगर हम दो congruent object है उसको एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे. यानी कि जो नीचे वाली चीज़ है वो हमें दिखाई नहीं देगी, ऊपर से वो उसको पूरी तरीके से कवर कर लेगी. One exactly cover the other. The method of comparing the figure is known as the method of superposition. Method को बोलते हैं superposition. नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. इफ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज दे आर कॉन्ग्रुएंट. अगर दो फिगर है जिनका साइज एंड शेप एकदम सेम है तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. वी यूज द सिंबल. ये किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट का. अगर हमको शो करना है कि दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसके बीच में ये वाला जो सिंबल है उसका यूज करेंगे. Two plane figures are congruent if each one superposed on another covers exactly. अगर दो चीज़ें हैं वो congruent है तो अगर हम उनको एक दूसरे पोज करेंगे या ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को exactly कवर कर लेगी. That means they are congruent. Next is congruence of simple geometrical shape. What do you mean by the word congruent? The word congruent means equal in all respect. A geometrical figure is congruent to another geometrical figure when both the figure are identical or equal in all respect in their shape and size. Means सभी चीज़ों में equal हो, shape में भी और size में भी. In other word, if one figure is kept on other, they should coincide. Means एक दूसरे को पूरी तरीके से cover कर ले with each other exactly to be called congruent to one another. Next is congruence of line segment. In above figure, AB is equal length to CD. AB and CD की जो length है वो equal है. EF is longer than CD, but जो EF है ये CD से क्या है? बड़ी है. If we trace the line segment AB on tracing paper and place it on the CD such that the point A falls on C and AB falls along the CD. अगर हम ट्रेसिंग पेपर पर वो AB को ट्रेस कर लें एंड उसको हम क्या करें? CD के ऊपर रखें तो जो A पॉइंट है वो C पे आए और जो लाइन है AB वो CD को पूरी तरीके से अगर कवर कर लेगी और जो B पॉइंट है वो किस पे आएगा? पॉइंट D पे. दैट मीन्स line AB is said to coincide with CD. So AB is congruent to CD. तो हम कह सकते हैं कि AB is congruent to CD. AB line segment is congruent to line segment CD. And we write AB line segment is congruent to CD. Very often this is simply written as AB is equal to CD because equality in term of length is only criteria needed to make the two line segment congruent. If we place the same tracing of AB on EF, अगर same जो AB को trace किया था उसको EF पे रखेंगे तो वो उसको पूरी तरीके से कवर नहीं करेगी.
सच दैट ए कोइंसाइड विथ ई, जो ए पॉइंट है वो ई पे आए, बट हम जो देखेंगे कि जो बी पॉइंट है इसका वो एफ पे नहीं आएगा। Such that A coincide with E and AB falls along EF, we will find the point B does not fall on F. So AB does not coincide with EF exactly. Hence AB is not congruent to EF. तो हम कहेंगे AB is not congruent to EF. Next is congruent of angles. If the measurement of two angles are equal, then it can be said that the angles are equal or congruent. Consider two angle, दो एंगल दे रखे हैं, एंगल MNO एंड एंगल PQR। अगर इनका मेजरमेंट सेम है दैट मीन्स ए कॉन्ग्रेंट है। ट्रेस MNO ऑन ट्रेसिंग पेपर एंड सुपरइम्पोज इट ऑन PQR। एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे, एंगल MNO को ट्रेस करेंगे और इसको किस पे रखेंगे, एंगल PQR पे। किस तरीके से रखेंगे, यानी कि जो पॉइंट M है वो P पे आए और Q पॉइंट जो है वो N पे आए। अंडरस्टैंड that the point N falls on Q and the ray NO falls along the ray QR, means ये जो ray MN ये किस पे आए, PQ पे, and NO आए QR पे। It will be seen that the ray NM falls exactly along the QP and the angle MNO coincide exactly with angle PQR. Thus angle MNO is congruent to angle PQR. Remember that NM, NO and QP and O are rays, not the line segment. ये क्या है, rays है, ना कि line segment. Hence they are infinite length. Angle MNO is congruent to angle PQR because the measure of two angles are equal and not because the ray are equal. ज़रूरी नहीं है कि रे भी इक्वल साइज में हो, बट एंगल का जो मेजरमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। हो सकता है रे छोटी बड़ी भी हो सकती है, जैसे सपोज टू एंगल है, अगर उनका मेजरमेंट सेम है बट ये जो रे है इसकी लेंथ में चेंज है, बट ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे अगर उनका मेजरमेंट सेम है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेंस ऑफ स्क्वायर्स। टेक टू स्क्वायर्स से KLMN एंड PQRS, दो स्क्वायर है, एक KLMN और दूसरा PQRS। ट्रेस द कॉपी ऑफ KLMN, superimpose on the square of PQRS such that K falls on P and side KL on side PQ। हम एक ट्रेसिंग पेपर पे एक जो स्क्वायर है इसको ट्रेस कर लेंगे और दूसरा जो स्क्वायर है PQRS इसके ऊपर रखेंगे। जब इसके ऊपर सुपरपोज करेंगे तो हम देखेंगे जो KN है वो किसके ऊपर आएगी, SP के PS के ऊपर, NM आएगी SR के ऊपर, ML आ जाएगी RQ के, एंड KL आ जाएगी PQ के ऊपर। अंडरस्टैंड? Thus the square KLMN cover the square PQRS exactly only if KL is equals to PQ। मीन्स KL और PQ इक्वल होंगे तभी उसको पूरी तरीके से कवर करेगी। स्क्वायर KLMN इज कॉन्ग्रेंट टू स्क्वायर PQRS। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो स्क्वायर हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, एज द फॉलोइंग सेट ऑफ फिगर कॉन्ग्रेंट। हमें देखना है कि ये दोनों जो है कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। इस पे साइड देखिए 3 है, 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ओके, इस फिगर में भी ऑल साइड्स जो है 3 सेंटीमीटर की हैं, सेम लेंथ की। अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से या इसको घुमा के इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे तो देखेंगे कि इसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। दैट मीन्स ये दोनों जो फिगर हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रेंस ऑफ रेक्टेंगल। सेम वही क्राइटेरिया रहेगा जो कि स्क्वायर में यूज किया था, वही रेक्टेंगल में रहेगा। कंसीडर द रेक्टेंगल ABCD एंड EFGH। दो आपको रेक्टेंगल दे रखे हैं, आप ट्रेसिंग पेपर पे अगर इस रेक्टेंगल को ट्रेस करेंगे एंड विल कीप इट ऑन दिस रेक्टेंगल, अगर ये इसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जो लेंथ है साइड्स की वो इक्वल है, तो उसको कोइंसाइड करती है, दैट मीन्स ये दोनों रेक्टेंगल है वो कॉन्ग्रेंट होंगे। सुपरपोज इट ऑन रेक्टेंगल EFGH सच दैट AB फॉल्स ऑन EF एंड BC फॉल्स ऑन FG। मीन्स जो AB है वो किस पे है, EF पे, एंड BC जो है वो FG पे, HG है
वो DG जो है वो FG पे आ जाए, इस तरीके से इसको पूरी तरीके से कवर करे, जो साइड्स की लेंथ है वो सेम होगी। दैट मीन्स द रेक्टेंगल ABCD इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल EFGH। एग्जाम्पल लेते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर द रेक्टेंगल ABCD इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल PQRS if AD 4 cm, PQ 7 cm, फाइंड AB एंड PS। आपको दे रखा है AD 4 cm एंड PQ is 7 cm। अगर PQ फाइंड AB एंड PS, AB एंड PS फाइंड करनी है। फॉलोइंग फिगर द रेक्टेंगल ABCD इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स साइड जो होंगी वो सेम मेजरमेंट की होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है दैट मीन्स ये भी 4 होगी, और ये कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर है दैट मीन्स ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेक्टेंगल है तो ये भी 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, एंड दिस ओनली 4 सेंटीमीटर, बिकॉज ये दोनों क्या है, रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट है। Solution, since the rectangle ABCD is congruent to rectangle PQRS, PQ equals to AB and AD equals to PS. Since PQ 7 cm तो AB 7 cm हो जाएगी। Similarly, since AD equals to 4 cm, PS equals to 4 cm, hence AB 7 cm and PS 4 cm। क्योंकि दोनों जो रेक्टेंगल थे वो कॉन्ग्रुएंट थे, दैट मीन्स उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो भी इक्वल होगी। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। टेक अ सर्कल O1 and O2, दो सर्कल लिए O1 and O2, ट्रेस द कॉपी ऑफ सर्कल से O1, ट्राई टू कवर द सेकेंड सर्कल विथ इट। वी ऑब्जर्व दैट द सर्कल O1 विल कवर द सर्कल O2 एग्जैक्टली इफ देयर रेडियस आर सेम। अगर दोनों की रेडियस जो है वो सेम है, वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, दैट मीन्स वो दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दस टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियस। सर्कल O1 is congruent to circle O2 if the radius XY ये जो है is equal to MN। That means ये दोनों जो सर्कल होंगे वो क्या होंगे, congruent होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, is the following set of figure congruent। दोनों में देखिए रेडियस सेम है, OP 6 cm, OQ 6 cm, that means these circles are congruent। The above set of circle are congruent as they have same radii, the radius 6 cm of both the circle A1 and A2। क्लियर, अगर रेडियस सेम है दैट मीन्स वो दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैज 6 एलिमेंट, 3 एंगल्स 3 साइड्स। ट्राइंगल में क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड which decide the shape and size of triangle. Let us consider two triangle ABC and DEF as shown on the right। दो ट्राइंगल लिए हमने ABC and DEF, एक ये है और एक ये है। क्लियर, let us compare them। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। There are 6 possible ways in which the vertices of two triangle ABC and DEF may be matched। 6 वे है कि इनको हम मैच कर सके जो vertices है। Thus, if angle ABCA and angle DEF, angle ABC यानी कि ये एंगल and angle DEF यानी कि ये एंगल सुपरपोजिशन कवर ईच अदर एग्जैक्टली, अगर ये दोनों को एग्जैक्टली कवर कर लेता है then the following matching will definitely exist। For example, the matching triangle ABC triangle DEF leads to following matching। यानी एंगल A जो है वो एंगल D को मैच करना चाहिए, एंगल C एंगल E को करना चाहिए, एंड एंगल B एंगल E को करना चाहिए। साइड्स कौन सी मैच करेगी, AB जो है वो मैच करेगी DE के साथ, AC मैच करेगी DF के साथ, एंड BC मैच करेगी EF के साथ। क्लियर, अगर इस तरीके से मैच करते हैं प्रॉपर एंगल एंड साइड्स, दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मैचिंग ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल PQR लीड्स द फॉलोइंग मैचिंग। अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है दैट मीन्स क्या क्या मैच करना चाहिए, एंगल X एंगल P के साइड मैच करना चाहिए,
एंगल वाई एंगल क्यू के साथ एंड एंगल जेड एंगल आर के साथ, इसके साथ साइड जो है वो भी मैच करनी चाहिए, एक्स वाई मैच करनी चाहिए पी क्यू के साथ, वाई जेड मैच करनी चाहिए क्यू आर के साथ एंड एक्स जेड जो मैच करनी चाहिए वो पी आर के साथ. ओनली देन these two triangles can be congruent. Understand? When we write triangle XYZ is congruent to triangle PQR, it means XYZ are matched with PQR respectively, where order of letter denoting the vertices is important. ज़रूरी है कि सेम वर्टिसेस मैच करें, ये ऑर्डर ज़रूरी है. एक्स पी के साथ मैच करना चाहिए, वाई क्यू के साथ, एस जेड आर के साथ. द मैचिंग पार्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट. नेक्स्ट इज साइड 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 यानी एस 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 कॉन्ग्रेंस कंडीशन. ट्राइंगल में 4 कंडीशन होती है कॉन्ग्रेंस की, उनको प्रूव करने के लिए. फर्स्ट इज एस 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 मीन्स तीनों साइड्स जो होती है वो सेम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट है. If the 3 sides of one triangle are respectively equal to the 3 sides of other triangle, the 2 triangles are congruent. अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड से मैच कर रही है, इक्वल साइज में है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है. किस कॉन्ग्रेंसी से? एस 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 यानी साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड्स मैच कर रही हैं, इक्वल है, तो हम कहेंगे वो जो ट्राइंगल है वो है कॉन्ग्रेंट. Check the activity. Draw triangle ABC and AB 4.5 cm, BC 5.5 cm and CA 3.5 cm. Thus we have, हमारे पास 2 ट्राइंगल हो जाएंगे ABC and DEF. AB किसके इक्वल हो जाएगी? DE के. AB इक्वल हो जाएगी DE के, BC इक्वल हो जाएगी EF के एंड AC इक्वल हो जाएगी DF के. Now make a trace copy of triangle DEF and try to cover ABC. अब हम इसकी ट्रेस कॉपी बनाएंगे और उस ट्राइंगल को कवर करने की कोशिश करेंगे विथ डी ऑन ए. डी पॉइंट जो है वो ए पे होना चाहिए, ई जो है वो बी पे होना चाहिए एंड एफ पॉइंट है वो सी पे होना चाहिए. देन वी विल चेक कि पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. देन ओनली वी कैन से दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 5. Without drawing the triangle, state the corresponding between the sides and the angles of following pair of congruent triangle. 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, एक्स वाई जेड एस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एम एन ओ. तो हमें बताना है कौन से वर्टिसेस और कौन से जो साइड्स हैं वो कॉन्ग्रेंट है. जो उनका ऑर्डर है वो हमेशा ध्यान में रखना है कि किस ऑर्डर में. एक्स वाई जेड मीन्स जो एक्स पॉइंट है वो एम पे होगा, कोइंसाइड करेगा वाई एन के साथ एंड जेड ओ के साथ. सो एक्स एम वाई एन एन जेड ओ. और साइड कौन सी हो जाएगी? एक्स वाई इक्वल होगी एम एन के, वाई जेड हो जाएगी एन ओ के एंड जेड एक्स या एक्स जेड किसके इक्वल हो जाएगी? ओ एम के. क्लियर? सिमिलरली जो एंगल एक्स है वो किसके बराबर होगा? एंगल एम के. एंगल वाई हो जाएगा एंगल एन के एंड एंगल जेड हो जाएगा एंगल ओ के. आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनके ऑर्डर को हमेशा ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही उनके वर्टिसेस, साइड्स एंड जो एंगल्स है वो मैच होंगे. क्लियर? नेक्स्ट है साइड एंगल साइड यानी SAS कॉन्ग्रेंस कंडीशन. SAS कॉन्ग्रेंट कंडीशन क्या होगी? जब 2 साइड्स और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो मैच करेगा, दैट मीन्स वो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट होंगे. इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड मीन्स जो 2 साइड को जो 2 साइड इक्वल है उनको मिला के जो एंगल बन रहा है वो इक्वल हो. द वन ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर. द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट मीन्स ये जो 2 साइड्स है, अगर 2 साइड्स किसी दूसरे ट्राइंगल की भी ये दोनों साइड सेम हो और इन दोनों साइड से मिलके जो एंगल बन रहा है वही सेम दूसरे ट्राइंगल में भी, ना कि ऐसा नहीं कि ये वाला हो जाए और दूसरे का ये वाला हो जाए. सेम जो इक्वल साइड है या सेम साइड्स हैं उनसे मिलके जो एंगल बन रहा है अगर वो इक्वल है दूसरे ट्राइंगल में भी, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल SAS कॉन्ग्रेंसी से इक्वल है. चेक द एक्टिविटी. ड्रॉ ट्राइंगल ABC with AB 8 cm, AC 6 cm, angle A 45 degree. Also draw another triangle PQR with PQ 8 cm, PR 6 cm
एंड एंगल पी जो है 45 डिग्री। दस वी हैव, अब हम देखेंगे ए बी 8 सेंटीमीटर है, उसके इक्वल कौन सी, पी क्यू, ए सी के इक्वल हो जाएगी पी आर, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। अब हम इसकी ट्रेस कॉपी बनाएंगे, मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राई टू कवर ट्राइंगल पी क्यू आर विद ए पॉइंट कहाँ पे होगा, पी पे, बी हो जाएगा क्यू पे, सी ऑन आर। यू विल फाइंड द टू ट्राइंगल विल कवर ईच अदर एग्जैक्टली, मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 6। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। फर्स्ट ए लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ए 60 डिग्री है। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या है, पी आर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर एंड एंगल आर जो है वो 60 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल दे रखे हैं। वी हैव ए बी किसके इक्वल है, पी आर के 3 सेंटीमीटर, देन ए सी इक्वल है क्यू आर के, ए सी इक्वल है क्यू आर के 6 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर, दोनों कितने हैं, 60 डिग्री। Thus in triangle ABC and triangle PQR, the two sides and the included angle of one triangle are equal to two sides and the corresponding included angle of other. So ऐसे as congruency condition से हम कह सकते हैं दोनों triangle, the two triangles are congruent, therefore triangle ABC is congruent to triangle RPQ. ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एंगल कौन से इक्वल है, एंगल ए और आर, तो एंगल ए और आर इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, पी आर के या आर पी, सेम है। तो हमें ऑर्डर का जरूर ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम ट्राइंगल को नेम करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज एंगल साइड एंगल, यानी ASA कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। नेक्स्ट जो कंडीशन है जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज एंगल साइड एंगल, ASA। इससे पहले हमने की थी SAS, मीन्स दो साइड्स और उनसे जो एंगल बन रहा है वो अगर सेम हो। हम कर रहे हैं दो जो एंगल है वो सेम है और उसकी जो साइड है वो सेम होनी चाहिए। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड of one are respectively equal to two angles and the included side of other. तो हम कहेंगे these two triangles are congruent by ASA congruency. Check the activity. Draw triangle ABC with AB 7 centimeter, angle A 75 degree, angle B 40 degree. Also draw another triangle PQR. PQ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, angle P equals to 75 degree, Q equals to 40 degree. Thus we have triangle ABC and PQR such that AB किसके इक्वल हो जाएगी, AB is equals to PQ and angle A is equals to angle P and angle B is equals to angle Q. दो एंगल और एक साइड, जो उसकी साइड है, जिन दोनों ये दोनों एंगल बने हैं उसके साथ जो साइड है वो इक्वल है। तो हम कहेंगे दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। We will find the two triangle will cover each other exactly, so we can say triangle ABC is congruent to triangle PQR. Example लेते हैं, in each of the following pair of triangle, the measure of some part of located alongside by applying ASA congruency. ASA means angle side angle congruency का use करना है। State which are the congruent. State the answer in symbolic form. हमें दे रखा है यहाँ पे ट्राइंगल ABC, इसमें साइड्स कौन सी इक्वल है, BC एंड QR, और एंगल्स कौन से हैं, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्लियर? इन ट्राइंगल ABC एंड PQR वी हैव BC इक्वल्स टू QR 4 सेंटीमीटर, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल ACB equals to angle PRQ equals to 40 degree. By ASA congruency condition, we can say triangle ABC. Triangle ABC is congruent to triangle PQR.
हम कह सकते हैं ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से दो एंगल और एक जो से एंगल से मिलकर साइड से एंगल बने हैं वो अगर इक्वल है, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं दीज टू ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट, राइट एंगल और हाइपोटेनस RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। फोर्थ जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कंडीशन होती है दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंसी या राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। Two right angle are congruent when the hypotenuse and one side of one triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of other triangle। एक ट्राइंगल अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा, एक ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड की इक्वल होगी, दैट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। चेक द एक्टिविटी, ड्रॉ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल C 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है C पॉइंट पे, इट्स हाइपोटेन्यूस AB 10 सेंटीमीटर एंड साइड AC 8 सेंटीमीटर। ऑल्सो ड्रॉ अनदर ट्राइंगल MNO, एंगल O जो है 90 डिग्री है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस MN 10 सेंटीमीटर है एंड साइड MO 8 सेंटीमीटर। दस वी हैव टू ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल MNO, ट्राइंगल MNO एक ये हो गया एंड दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ACB। देखिए O किससे मैच कर रहा है, C से, एंड साइड AB जो हाइपोटेन्यूस है वो मैच कर रही है MN से एंड AC मैच कर रही है MO से। नाउ मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ ट्राइंगल MNO। ट्राइंगल MNO को हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे और ट्राइंगल ABC के ऊपर रखेंगे। किस तरीके से, विथ M जो पॉइंट है वो A पे आए, N B पे एंड O C पे। वी विल फाइंड दैट द टू ट्राइंगल विल कवर ईच अदर एग्जैक्टली। हम देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNO बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। जब भी हम किसी टू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ कर रहे हैं और हमें उसको स्पेसिफाई करना है कि इस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन का यूज़ करके हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। क्लियर? ये एक्सरसाइज ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।